हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्ष अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोगों को इसके बेसिक्स के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने ये चैप्टर 11th में किया है और अगर 12th क्लास के इस चैप्टर पर हमें अपनी कमांड करनी है तो हमें बेसिक्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए फर्स्टली हम लोग पिक करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि ये 11th क्लास के रिलेशंस एंड फंक्शन से रिलेटेड टॉपिक है। तो सबसे पहले हमें 11th और 12th के बेसिक्स के बारे में पता होना ही चाहिए। इन कार्टेशियन प्रोडक्ट लेट वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B is that A equals to 1 to 3 and B equals to 4 5 6. 1 to 3 are the three elements of A and 4 5 6 are the three elements of B. Here if we multiplied it is that Cartesian product between A cross B, then we will get 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6. There are 9 ordered pairs in Cartesian product of A cross B, and in each ordered pair the first element belongs to set A and the second element of ordered pair belongs to B. Now we are talking about relation between A set A and set B. Firstly, we have to know about the relation, and the definition of relation is a relation to a B is a subset of Cartesian product of A cross B. Is that if we want to define about the relation, then we have to know about the Cartesian product of these sets, and the definition is a relation from A to B is a subset of Cartesian product of A cross B. Is that R is a subset of A cross B or A cross A. A cross A will be in the case in which two sets are equal. Is that A cross A, relation from A cross A. Let we take a relation A R equals to AB in which AB are both odd and A first element of ordered pair A belongs to capital A, set A, and second element of ordered pair belongs to set B. Okay, now in our example we can see that we have taken example in which both A and B are both odd. So here 1 4 is a even, one element is odd and one element is even. So we take 1 5 because in 1 5 both elements are odd numbers, and in 1 6 there is no odd. 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5. Is that in this example in Cartesian product of A cross B there are two ordered pairs in which both the elements are odd. So to define a relation between A and B we can take 1 5 and 3 5, and we already know that 1 5 and 3 5 these two ordered pairs are the subsets of A cross B. So we can say that R is a relation from set A to B, and the elements of relation are the subset of A cross B is that Cartesian product. Now we are taking another example. R equals to A cross AB such that A and B are both even. Firstly we have take odd numbers in first example, and now we take both are even. So we are talking about now again that example which we have done already. So here we can see that 2 4 in the ordered pair 2 4 both elements are even, and in 2 6 both elements are even. So we take 2 4 and 2 6 as a ordered pair in relation A to B in which A and B are both even. Hence students we can say that R is a relation from A to B because both the elements of relation R are the subsets of A and B. Is that clear? ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लिया, हम लोगों ने रिलेशन के बारे में पढ़ लिया। एक बार और क्विकली समझ लीजिए कि किसी भी रिलेशन को सेट ए से बी में बताने के लिए हमारे पास सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोगों ने जो ए और बी सेट लिया था उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट्स थे। अब हमारे रिलेशन के अकॉर्डिंग ए एंड बी आर बोथ ओड एंड ए एंड बी आर बोथ इवन। तो हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था उसके अंदर हमने ओनली वही ऑर्डर्ड पेयर्स पिक किए जिसके अंदर दोनों एलिमेंट्स
ओड थे या इवन थे। और हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि R इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, R is a subset of A cross B, so these are the relation for A and B. अब बात आती है how can we say that total number of relations, total number of relations को हम किस तरह से निकाल सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ देखा हमारे एग्जाम्पल के अंदर सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स थे एंड सेट बी के अंदर भी 3 एलिमेंट्स थे। तो अब हम इन एलिमेंट्स के नंबर के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें ए टू बी के अंदर तो टोटल रिलेशंस का फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर क्यू इज़ दैट 2 की पावर 3 इंटू 3 इन विच 2 की पावर 9। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों सेट्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस आर 2 की पावर 9। ओके स्टूडेंट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने के बाद और रिलेशन पढ़ने के बाद अब हमारा मेन टॉपिक आता है फंक्शन। फंक्शन का जो हमारा डिनोशन है वो कुछ इस तरह से है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज आल्सो ए टाइप ऑफ रिलेशन। यानी कि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी भी एक तरीके का रिलेशन ही है, फंक्शन भी रिलेशन के अंदर से ही निकलते हैं। बट यहाँ पर हमारी 2 कंडीशन अप्लाई होती हैं इन विच 2 ordered pairs have same first element. 2 ordered pairs have same elements. Each element of set A has one and only one image in set B. यानी कि जो हमारा ordered pair होगा और हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट नो 2 ordered pair have same first element, यानी कि अगर हमारे पास कुछ ordered pairs हैं उनके अंदर कभी भी फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, यानी कि सेट ए की यानी कि फर्स्ट एलिमेंट की सेकंड सेट के अंदर ओनली वन ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के अंदर हमने लिया एफ इज ए फंक्शन वेयर ए बी इज ए ऑर्डर्ड पेयर एंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी आर बी इक्वल्स टू ए प्लस 5 वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। If we take a equals to 1, then we get b equals to 6. So our ordered pair is 1 6, and if we put 2, and then we get 7. So our ordered pair is 2 7. But if we take 3, then we get b equals to 8, which does not belongs to set B. So it is not a ordered pair which contain in F. Okay students, तो अब हम इसके अंदर ये देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है दोनों ही ऑर्डर्ड पेयर्स का वो सेम नहीं है। और दूसरा ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज, 1 की इमेज 6 है, 2 की इमेज 7 है, यानी कि इन दोनों की इमेज एक ही है। तो हम इस चीज़ को ये कह देंगे कि ये फंक्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने 11th क्लास में एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी है जिनका नाम होता है डोमेन, रेंज या कोडोमेन। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम 2 सेट्स के बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनके फर्स्ट एलिमेंट हमेशा डोमेन के अंदर पिक किए जाएंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं 1 1 1 इज़ दैट 1 इज़ वन को हम डोमेन के अंदर ले सकते हैं 2 3। उसी तरीके से रेंज में हमेशा सेकंड एलिमेंट को पिक किया जाता है। तो पूरे के पूरे ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर 5 आया है, 6 आया है, 7 आया है, तो हम इसे रेंज कह देते हैं। अब कोडोमेन के लिए आप लोगों को थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा कि कोडोमेन के अंदर हमेशा सेट बी यानी कि जो हमारा सेकंड सेट होता है ऑर्डर्ड पेयर्स का वो पूरा का पूरा पिक कर लिया जाता है। तो हमारी जो कोडोमेन होती है वो हमेशा सेट बी के इक्वल होती है, और जो हमारा डोमेन होता है वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, और जो हमारी रेंज होती है वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर की सेकेंड एलिमेंट होती है। स्टूडेंट्स, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, फंक्शन, डोमेन, रेंज और कोडोमेन को पढ़ने के बाद अब हम लोग 12th के टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। 12th के टॉपिक्स को समझने से पहले हमें इसके बेसिक्स के बारे में जानना होगा। अब इसके बेसिक्स क्या हैं कि अभी हम लोगों ने 11th में पढ़ा था रिलेशंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले अब हमें ये पता होना चाहिए कि रिलेशंस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट आर बी ए रिलेशन इन सेट ए, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो हमारे रिलेशंस होते हैं वो गिवन सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होते हैं।
तो इस बार मैंने कन्फ्यूज़न से बचने के लिए दोनों सेट सेम ले लिए, ए और ए, ताकि मुझे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जब मैं ए के रेस्पेक्ट में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूँ तो मेरे पास 1 2 3 5 के लिए मेरे पास टोटल नंबर जो एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं, तो 4 4 जो 16 ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर इन ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए मुझे टाइप्स ऑफ रिलेशन को डिफ़ाइन करना है तो उसके अंदर सबसे पहला आएगा नल और वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर से डोमेन और रेंज की वैल्यू पुट करने के बाद कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे, वो आपका नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट कहलाता है। फॉर द एग्जांपल, if we put 1 equals to a equals to 1, then we get 6। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम यहाँ पर b इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं a की वैल्यू, तो स्टूडेंट हमारा आएगा 6। और हम लोगों को पता है कि हमारे किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के अंदर 1 6 इंक्लूडेड नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये रिलेशन एम्प्टी रिलेशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम 1 ना लेके अगर 2 ले लें, अगर हम 2 भी ले लेते हैं तो b इक्वल्स टू होगा 2 + 5। तो जो हमारा रिलेशन बन के आएगा वो आएगा 2 7, which is not a subset of given Cartesian product. So we can say that 2 7 is also does not 2 7 will not exist in ordered pair, so it is not a relation. So we can see that this given relation is a subset, is our empty relation. Okay students, now we are talking about universal relation. सभी को नाम से पता चल रहा है यूनिवर्सल रिलेशन। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट, यानी कि फर्स्ट सेट और सेकेंड सेट के बीच जो हम ऑर्डर्ड पेयर्स निकालते हैं उनके लिए यूनिवर्सल रिलेशन को डिफाइन किया जाता है। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट, then it is called universal relation. For the example, we take example a b such that a minus modulus of a minus b is greater than equal to 0। यानी कि अब मैं a और b की कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ पे हमेशा वैल्यू 0 से बड़ी आती है। जहाँ पे हमारा जो हमारा एलिमेंट a है वो बिलोंग करेगा a को, b कैपिटल B सेट को बिलोंग करेगा। देन वी कैन से दैट r इक्वल्स टू a क्रॉस a, यानी कि अगर हमारे सभी रिलेशंस के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर बन के आए हैं वो इक्वल हो जाते हैं ए क्रॉस ए के, यानी कि रिलेशन के अंदर आने वाले सभी ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर के, देन उस कंडीशन के अंदर हमारा जो रिलेशन है वो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। स्टूडेंट एक बार और देख लीजिए कि नल रिलेशन, वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन बताने के लिए जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है, अगर रिलेशन के अंदर एक भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट नहीं करता जो हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट में हो, तो ऐसा रिलेशन हमारा एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। और अगर हम यूनिवर्सल रिलेशन की बात करें तो यूनिवर्सल रिलेशन के अंदर आने वाले सभी ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आने वाले ऑर्डर्ड पेयर के, देन उस कंडीशन के अंदर हमारा रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। ओके स्टूडेंट, हालांकि आइडेंटिटी रिलेशन इतना कोई खास नहीं है, फिर भी जब हम पढ़ रहे हैं तो आप लोग एक बार देख लीजिए। ऐसा रिलेशन जिसके अंदर वैल्यू पुट करने के बाद दोनों एलिमेंट सेम होते हैं वो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, r इक्वल्स टू ए सच दैट a बिलोंग्स टू कैपिटल R, यानी कि जो हमने ए फर्स्ट एलिमेंट पिक किया वही सेकेंड एलिमेंट होता है, तो उस केस के अंदर रिलेशन हमारा आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे आ जाइए और हम बात करते हैं आगे इस चैप्टर की। मेन और सबसे ज़्यादा बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स, हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है और अब यह हमारा 12th क्लास का मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। अभी तक हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, फंक्शन और उसके बाद रिलेशंस के टाइप्स, आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशंस को पढ़ा है। बट अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के टॉपिक्स पे डिपेंड करते हैं।
सबसे पहले आता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी ये टॉपिक इस बार के लिए काफ़ी हॉट है, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू बन जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कहता है कि हमारे हमेशा रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर डेफिनेशन ये कहती है कि अगर ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट सेम हों और वो फिर भी सेट के अंदर बिलोंग करते हैं तो उस केस के अंदर हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। फॉर द एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने ऊपर एग्ज़ाम्पल लिया था A = 1 2 3 4। 1 2 3 5 और हमारे यहाँ पर फर्स्ट एग्ज़ाम्पल के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि 1 1 आया, 2 2 आया, 3 3 आया। तो इस केस में ये रिलेशन नहीं होगा। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, इस केस के अंदर ये रिलेशन नहीं होगा, बट इट इज़ अ आइडेंटिटी रिलेशन बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ईच पेयर इज सेम। 1 1 2 2 3 3, so we can say that is not a relation but it is a identity relation। अब ये रिलेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे सेट के अंदर 1 2 3 5 है। अब मेरे पास 1 का पेयर भी है, 2 का पेयर भी है, 3 का पेयर भी है, बट मेरे पास 5 का पेयर सेम नहीं है, जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि सेट ए के लिए ये रिफ्लेक्सिविटी शो नहीं करता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रिलेशन अनदर एग्जांपल की, तो उसके अंदर आपका 1 1 2 2 3 3 4 4 सभी के सभी एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इस केस के अंदर हम ये कह देंगे कि यहाँ पे हमारा रिलेशन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया है, आप इस तरह से सेट ले लीजिए। एक A = 1 2 3 4। हम लोग इसके ऊपर इन चीज़ों को डिफ़ाइन करेंगे। अगर हमारे पास सेट A है और उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, और अगर ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए तो इसके ईच एलिमेंट के लिए एक ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए जिनके अंदर डोमेन और रेंज इक्वल हो। तो जो हमारा फर्स्ट रिलेशन था उसके अंदर 1 1 था, 2 2 था, 3 3 था, बट 4 4 नहीं था। इस वजह से हमने कहा कि ये रिलेशन नहीं होगा, बट आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो सेकंड एग्जांपल के अंदर हम लोगों ने देखा 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 भी है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो गिवन एग्जांपल है ये रिलेशन भी है और आइडेंटिटी भी है। अगर हम थर्ड एग्जांपल में बात करें 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2, तो अब इस केस में ये रिलेशन तो हो जाएगा स्टूडेंट्स, बट आइडेंटिटी फंक्शन नहीं होगा। क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन का कहना ये है कि आइडेंटिटी रिलेशन ओनली तभी हो सकता है जब इक्वल हो। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव रिलेशन को देखा। क्या कि अगर दोनों के दोनों एलिमेंट सेम हैं और उस रिलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और वो सभी के सभी ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट करते हैं, तो उस केस में ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। अब अगर हम बात करें, अब हम इसकी बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्री का मतलब होता है रिवर्स ऑर्डर। अगर हम एक ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं तो उसका अपोजिट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर द एग्जांपल इफ इन ए रिलेशन A1 A2 belongs to R, A1 A2 belongs to R, then A2 A1 also belongs to R, then it is said to be symmetric relation. Now we are taking an example in which we take a set A equals to A equals to 1 2 3 and 4। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ देखा क्या कि 1 2 है, 2 3 है और 1 1 है। तो हम लोगों ने देखा 1 2 का रिवर्स यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो ये रिलेशन नहीं होगा, सिमेट्री नहीं बनाएगा। सेकंड के अंदर हम लोगों ने देखा 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। तो हम इसके अंदर कह सकते हैं कि ये हमारा
रिलेशन हो जाएगा और सिमेट्री बना लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हमारे थर्ड एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं 1 2 है तो इसका रिवर्स 2 1 भी है, 2 3 है तो इसका रिवर्स 3 2 यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से ये सिमेट्री नहीं बनाएगा। स्टूडेंट सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर अगर हम एक ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं और उस सेट के अंदर उसका रिवर्स भी अवेलेबल है तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं होगा। सेकंड एग्जांपल आप लोग एक बार और देख लीजिए। हमारे पास 1 2 है, 2 1 है, ठीक है। 1 1 है, 1 1 अपने आप का ही रिवर्स है, 2 2 भी, 3 3 भी। तो हम लोगों ने कह दिया कि ये रिलेशन है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ थर्ड वन की, तो थर्ड वन के अंदर हम क्लियरली देख सकते हैं कि 1 2 का उल्टा 2 1 भी है, 2 3 का रिवर्स नहीं है, यहाँ 1 1 का रिवर्स भी है, 2 2 का रिवर्स भी है, 3 3 का भी रिवर्स है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट सेम हैं तो वो अपने आप के साथ सिमेट्री बना रहा है, बट अगर एलिमेंट अलग हैं तो उसका रिवर्स होना ज़रूरी है। अगर रिवर्स नहीं होगा तो वो आपका सिमेट्रिक नहीं बनाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब अगले एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं 1 1 सिमेट्री है, 2 2 सिमेट्री है, 3 3 सिमेट्री है, 4 4 सिमेट्री है, 1 2 सिमेट्री है, 2 1 सिमेट्री है, बट 2 3 की कहीं भी सिमेट्री नहीं बन रही है और हमारे पास 3 2 नहीं है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बना रहा है। इसके बाद बात आती है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको समझना होगा ध्यान से। इसके अंदर हम लोगों ने देखा क्या, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी शुड बी बिलोंग्स टू आर। यानी कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर तो जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है उनका ऑर्डर्ड पेयर भी आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। फॉर द एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं 1 2 2 3, 1 2 2 3, तो अब अगर इस सेट के अंदर 1 3 होता तो ये ट्रांजिटिव होता, बट अब इसके अंदर 1 3 नहीं है, जिसकी वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसी तरह से अगले एग्जाम्पल की बात करें 1 2 2 1, 1 2 2 1, देन वी हैव 1 1। अब वो सेम हो या ना हो इस बात से कोई मतलब नहीं होता। हम लोगों ने देखा 1 2 है, 2 1 है, तो इसका फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट सेम है, तो यहाँ हमारी ट्रांजिटिव बन रहा है। अब अगर मैं बात करूँ 1 1 की और 1 3 की, तो हमारे इस रिलेशन के अंदर 1 3 भी है। पहले तो मैं बात कर लेता हूँ 1 1 के साथ सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के सेम होना चाहिए, ये भी है मेरे पास। अब मैंने देखा अगर मुझे इसे ट्रांजिटिव बनाना है तो इसके साथ 1 3 का होना ज़रूरी है। अब ये अपने आप में 1 3 बना रहा है, जिसकी वजह से ये भी ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ 2 3 की, ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करता हूँ 2 3 की, तो हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी स्टार्टिंग 3 से हो रही हो। हम ट्रांजिटिव तभी डिफाइन कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमारा एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं है जिसकी स्टार्टिंग 3 से हो रही हो। अब अगर हमारे पास सेकंड पेयर ही अवेलेबल नहीं है, तो अब मैं ट्रांजिटिविटी चेक नहीं करूँगा और मैं उसे डायरेक्ट ट्रांजिटिव कह दूँगा। कहने का मतलब ये है, अगर मुझे ये शो कराना है तो मेरे पास ये और ये होना मस्ट है, तभी मैं इसको ट्रांजिटिव कहूँगा। बट अगर मेरे पास ये है और ये अवेलेबल ही नहीं है, तो इस केस में ये ट्रांजिटिव हो जाएगा बिना किसी चेकिंग के। एक बार और देख लीजिए स्टूडेंट्स, अगर मुझे ट्रांजिटिव कहना है तो मेरे पास फर्स्ट पेयर होना चाहिए और सेकंड पेयर होना चाहिए, तब इन दोनों के पेयर में हमारा थर्ड पेयर होना चाहिए फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के साथ। बट अगर हमारे पास फर्स्ट सेट है और सेकंड सेट अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे रिलेशन के अंदर मुझे चेकिंग की ज़रूरत नहीं है और मैं उसको ट्रांजिटिव बोल सकता हूँ। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जो हमारा सेकंड एग्जांपल है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमेशा एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है कि इक्विवेलेंस रिलेशन। हम लोगों को एक रिलेशन देने के बाद ये कहा जाता है कि प्रूव इट दैट इट इज़ अ इक्विवेलेंस रिलेशन।
तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना होता, हम लोगों को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव देखनी होती है। इफ़ अ रिलेशन होल्ड दीज 3 प्रॉपर्टीज देन इट इज़ कॉल्ड अ इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चंस में इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों से कहा था कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर के अंदर अगर आप लोगों को कमांड करनी है तो आप लोगों को बेसिक्स का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 9th 10th 11th तीनों ही क्लास से रिलेटेड हैं। अगर वहाँ यूज़ हुए कंसेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो आप इजीली फर्स्ट चैप्टर को ख़त्म कर सकते हैं। अब फॉर द एग्जांपल मैंने जो एग्जांपल लिया है मैंने उसमें बेस बनाया है कॉन्ग्रुएंसी को। अगर आप लोगों को कॉन्ग्रुएंसी पता है तो आप आराम से वर्किंग कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। अब जैसे इस एग्जांपल में कहा गया लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, यानी कि टी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सभी ट्राइंगल्स एग्जिस्ट करते हैं, तब इन ए प्लेन विद आर यानी कि रिलेशन इन टी गिवन बाय, तो हम लोगों को जो रिलेशन दिया है वो है आर इज ए रिलेशन फ्रॉम T1 टू T2 वेयर T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो हमारी रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन ये कहती थी कि अगर मेरे पास डेफिनेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर दोनों एलिमेंट सेम है तो भी वही बात सही होनी चाहिए। तो अगर मैं इस एग्जांपल की बात करता हूँ तो इस एग्जांपल के अंदर हम लोगों को पता होना चाहिए कि हर एक ट्राइंगल अपने आप का कॉन्ग्रुएंट होता है। 9th में ये स्टेटमेंट है कि एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। अगर हम लोगों को इस बेसिक के बारे में पता है, इस चीज़ के बारे में पता है, तो मैं इजीली आंसर कर सकता हूँ दैट इट इज़ रिफ्लेक्सिव, क्योंकि हम लोगों को पता है T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1 एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, यानी कि हर एक ट्राइंगल अपने आप का कॉन्ग्रुएंट होता है तो हमारी रिफ्लेक्सिविटी कंप्लीट हो जाती है। अब यही बात आगे अप्लाई होती है और सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी सिमेट्रिक रिलेशन ये कहता था कि इफ़ T2 बिलोंग्स टू R देन T1 आल्सो बिलोंग्स टू R, इज़ दैट अगर हम इस बात को कहेंगे कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 देन T2 is also belongs to T1. If it is possible then it is transitive, and if it is not possible then it will not be symmetric, not a transitive, it is symmetric. अब हम लोगों को पता है कि अगर कोई भी ट्राइंगल सेकंड ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो उसका कन्वर्स भी ट्रू होगा। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि ये सिमेट्री बनाएगा, यानी कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T1। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव का कहना ये था कि अगर फर्स्ट सेकंड बिलोंग्स टू आर एंड सेकंड थर्ड बिलोंग्स टू आर देन फर्स्ट थर्ड आल्सो बिलोंग्स टू आर, देन इट इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव, अदरवाइज इट विल नॉट बी ट्रांजिटिव। सो इफ T1 is congruent to T2, T2 is congruent to T3, then T1 is congruent to T3, इज़ दैट हम लोगों को पता है अगर T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के और T2 कॉन्ग्रुएंट है T3 के तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम कह देंगे कि इनके बीच जो रिलेशन बन रहा है, यानी कि इफ़ T1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू T3 देन T1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू T3 इज आल्सो ट्रू, देन इट इज़ सिमेट्रिक, देन इट इज़ ट्रांजिटिव। और इस केस के अंदर ये अप्लाई हो रहा है तो हम कह सकते हैं इट इज़ ट्रांजिटिव। और अभी हम लोग ऊपर इसके बारे में पढ़ के आए हैं कि अगर किसी भी रिलेशन के अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं तो हम उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आज इसके बेसिक्स के बारे में पढ़ा और देखा कि इसके अंदर हमारे बेसिक्स पिछली प्रीवियस क्लासेस के किस तरह से वर्क करते हैं, तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर
इसकी एक्सरसाइज आगे कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ इसके बेसिक्स को ध्यान से पढ़िएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।